welcome back to the new session of Indian economy from 1950 to 1990. See, in our last lecture, we have seen कौन से रिफॉर्म्स या चेंजेस या मेजर्स या पॉलिसी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए थे टू सॉल्व द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स. एग्रीकल्चर हमें पता था कि इंडिपेंडेंस के समय इट वॉज वेरी बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट. तो उस बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेंसी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए थे दैट वी हैव सीन इन अवर लास्ट लेक्चर. सो दिस थ्री थिंग्स गवर्नमेंट decided to implement: institutional reform, land reforms, technical reforms which is also known as green revolution, and general reforms. इन तीन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के बारे में गवर्नमेंट ने सोचा. इन तीनों में से इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैव सीन अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स. let's spare a minute for this thing. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हैं? Institutional reforms refers to change in ownership of land and promote equity. Institutional reforms में क्या हुआ था? Ownership change करने की बात है. मतलब पहले ownership किसी और की हो, फिर ownership change होकर किसी और की हो जाए, वो करना था institutional reform में, and equity agriculture में करना था. So इसके लिए government decided to go for two things: abolition of intermediaries and land sale. इंटरमीडियरीज को हटा के जो लैंड है वो टिलर्स की ऑनरशिप में हो जाए. दैट इज़ अबॉलिशिंग ऑफ इंटरमीडियरीज. एंड लैंड सेलिंग मतलब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि एक पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा अगर लैंड किसी के पास है तो गवर्नमेंट उससे ले लेगी, एंड गवर्नमेंट विल गिव दिस एक्स्ट्रा लैंड टू द लैंडलेस लेबरर्स. लेकिन हमने ये भी देखा था इन दो चीज़ों का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, because of certain loopholes that also we have discussed in our last lecture. So तीन reforms में से one reform we have seen in our last lecture. Today we are going to see the second reform, that is technical reforms और green revolution. ये जो reform है, ये जो changes है एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, इसके बारे में आप लोग अपने अर्लियर क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में. Now at the time of independence, 75% of the country's population was dependent on agriculture. इतनी सारी population agriculture में engage होने के बावजूद भी the productivity was low. The reason for that: old technology, improper infrastructure, lack of irrigation. These were the reasons जिसकी वजह से agriculture at the time of independence, in spite of this many population, remained backward. Now, agriculture was dependent on monsoon, and monsoon was very uneven. So अगर monsoon uneven है किसी साल, then farmers were in trouble. अगर irrigation facility उस farmer के पास नहीं है, then he is in big trouble. Irrigation facility है, then there is no issue. But irrigation facility बहुत कम थी उस समय पे. The stagnation in agriculture during colonial rule was permanently broken by the Green Revolution. Green Revolution के implementation के बाद ये जो एग्रीकल्चर में इश्यूज थे, प्रोडक्टिविटी कम है, टेक्नोलॉजी सही नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी सही नहीं है, दैट वाज ब्रोकन डाउन. ओके, नाउ लेट्स सी क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से द थिंग्स वर्कड ऑन आवर साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स it refers to increase in the production of food grains by using HYV seeds. HYV मतलब high yield variety seeds. इन seeds के use से production started increasing, especially for wheat and rice. लेकिन सिर्फ HYV seeds use करने से काम नहीं होता है, production नहीं बढ़ता है. With these HYV seeds, the farmers also need fertilizers, pesticides and regular supply of water. तो ग्रीन रेवोल्यूशन में सिर्फ HYV सीड्स के बारे में नहीं है, बट प्रॉपर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एज वेल एज रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर. ओके, दैट वाज देयर इन द ग्रीन रेवोल्यूशन. नाउ इंडिया अडॉप्टेड द HYV प्रोग्राम इन 1966 एंड ये सक्सेसफुल रहा, बिकॉज जो भी चीज़ें HYV प्रोग्राम के लिए ज़रूरी हैं, वी वर्कड ऑन दैट एंड वी गॉट सक्सेस. कौन सी चीज़ें चाहिए? HYV सीड्स, fertilizers, pesticides, proper supply of water, that is irrigation. So that all was done.
okay, and the program was successful, and this program is known as green revolution. अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसको 2 फेज में डिवाइड किया गया है। अभी हम पहले फर्स्ट फेज की बात करते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 1960s से लेके 1970s, एक्चुअली मिड 1960s टू मिड 1970s की बात है। दैट इज़ फर्स्ट फेज। इस फर्स्ट फेज में HYV सीड्स का यूज़ किया गया कुछ ही स्टेट्स में, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इन 3 स्टेट्स में। अब प्राइमरीली ये तो सही है, कुछ स्टेट्स में पहले इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए वेदर द रिजल्ट्स आर इन आवर फेवर और नॉट। सो इन 3 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया एंड इट बेनिफिटेड, ओके। एंड द यूज ऑफ दिस सीड्स प्राइमरीली वाज फॉर द व्हीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली, बिकॉज इन स्टेट्स में स्टार्ट किया गया एंड व्हीट रीजन्स में ही इसका बेनिफिट हुआ इनिशियली। दैट इज इन द फर्स्ट फेज। नाउ इन द सेकेंड फेज, दैट इज फ्रॉम मिड 70s to mid 80s, the HYV technology spread to large number of states and benefited variety of crops. See, the first phase क्या किया गया था 60s and 70s के मिड की जो बात है, नो, केरल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में ही इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया एंड फॉर व्हीट ओनली, व्हीट रीजन एरिया ओनली। बट इन द सेकेंड फेज दैट इज 70s से लेके 80s तक की बात है, इस टेक्नोलॉजी या ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ बहुत दूसरे स्टेट्स में भी किया गया एंड दूसरे क्रॉप्स के लिए भी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो इतना सक्सेसफुल रहा उसकी वजह से क्या हुआ? इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रेन्स। वी नाउ हैड नो लॉन्गर मर्सी ऑन US एंड अदर स्टेट्स, जहाँ से पहले हम फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करते थे, अब वहाँ से इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी have now enough grains because of the green revolution. Now we are no more on the mercy of Americans and the other nations for the food requirements. So this was about green revolution. Okay. now देखते हैं green revolution का या green revolution के achievements क्या क्या हैं. Okay, let's start with the first point, everyone. Advantages of green revolution or achievements in green revolution. Let's talk about the first point, that is commercialization of agriculture. Now first of all, see, commercialization of agriculture को समझने से पहले I want to tell you one thing, one term, that is marketable surplus. मार्केटेबल सरप्लस मतलब फार्मर्स के पास अपनी नीड सेटिस्फाई करने के बाद जो भी ग्रेन्स बचता है वो मार्केट में बेचते हैं, वहाँ से उनको पैसा मिलता है एंड दे सेटिस्फाई देयर अदर नीड्स। ये पॉसिबल हुआ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। दैट इज़ द फर्स्ट अचीवमेंट। ओके, नाउ फूड ग्रेन्स मार्केट में ज़्यादा आने लगे, अब उसकी वजह से एडवांटेज दूसरा ये होने लगा कि प्राइस हैं ग्रेन्स के वो कम होने लगे। सो नाउ दोज पीपल हु वर नॉट अर्लियर able to purchase the grains from market, now because of decrease in price they are able to purchase, so that is the advantage. Okay, उतना ही नहीं, we are now able to maintain the buffer stock also for the grains which can be used in the emergencies. So that is the first achievement that we have seen, commercialization of agriculture. Now let's look at the second achievement. Increase in production and productivity. See, production increased by many times. Not only production but productivity also increased. एक particular area पे पहले जितना crop farmer cultivate करते थे उससे ज़्यादा होने लगा, productivity started increasing. Because of green revolution, surplus के बारे में हमने पहले देखा, then production started increasing. So earlier which we were depending on other country, अब वो उस पर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, फूड शॉर्टेज भी अब नहीं है. No, it is all because of HYV seeds and green revolution. The third advantage to the country because of green revolution is increase in employment. जो पहले surplus labor होता था जिसे हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड पे जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग अगर रुके हुए हैं तो दैट इज़ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. तो दैट इज़ नाउ नो मोर बिकॉज एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. एक्सेस लेबर अब एग्रीकल्चर में नहीं रहा,
income also increased. Because of the adoption of green revolution, income of the farmer increased and enjoyed by the farmers in few states initially, that is Tamil Nadu, Punjab and all that, but later on सेकेंड फेज़ की वजह से दूसरे स्टेट्स में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया एंड वहाँ भी बेनिफिट होने लगा. सो इनकम ऑल्सो इंक्रीज्ड. पॉइंट नंबर 5, सेल्फ सफिशिएंसी. नाउ वी आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री बिकॉज हमारे पास ही इतना फूड ग्रेन्स होने लगा कि वी कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ आवर कंट्री. नॉट ओनली दैट, नाउ वी आर एबल टू मेंटेन द बफर स्टॉक ऑल्सो, सो जो इमरजेंसी में यूज़ किया जा सके. दैट इज़ वी आर नाउ सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सी इट इज़ बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दूसरे सेक्टर को भी बेनिफिट होने लगा. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ में बेनिफिट होने लगा. सी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, मशीनरीज, नो इक्विपमेंट्स, इन सब चीज़ों में भी डिमांड बढ़ने लगी. नो बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ने लगा एंड अल्टीमेटली ग्रीन रेवोल्यूशन में फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ होना भी ज़रूरी था. सो दिस इंडस्ट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग. ओके, सो दीज आर द अचीवमेंट्स. कमर्शलाइजेशन, सरप्लस होने लगा, द फार्मर स्टार्टेड सेलिंग द सरप्लस एंड स्टार्टेड सेटिस्फाइंग द अदर नीड्स. प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीज, सरप्लस लेबर अब इश्यू नहीं है. Income increase, yes, initially income increased in few states, but later on in the second phase the income started increasing in other states. We are no more on a mercy on other countries, so we are now self-sufficient. It is because of the green revolution, not only in agriculture but other sectors also developed in industries such as fertilizers, pesticides, machineries, equipments and etc. etc. So these are the achievements of green revolution. Now there are certain shortcomings also. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. नाउ लेट्स लुक एट दैट नेगेटिव पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीज्ड द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर फार्मर्स. तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट कौन ले सकता था? जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटी ये सब अफोर्ड कर सके. So it can be afforded only by the rich and the big farmers. Small farmers were not able to enjoy all these things. They are not able to purchase all these things. So बेनिफिट ग्रीन रेवोल्यूशन का एक्चुअली मिला किनको? सिर्फ बिग फार्मर्स को. सो डिस्पैरिटीज़ तो पहले से ही थी, अब वो डिस्पैरिटीज़ बढ़ने लगी. इंक्रीज इन द डिस्पैरिटीज़ बिकॉज एक्सपेंसेस करना पॉसिबल सिर्फ बिग फार्मर्स के लिए ही था. स्मॉल फार्मर्स के नॉट डू दिस ऑल एक्सपेंसेस. सो दैट इज़ द शॉर्ट कमिंग. नेक्स्ट शॉर्ट कमिंग इज पेस्ट अटैक. HYV सीड्स से जो फूड ग्रेन्स ग्रो होते थे, दे आर प्रोन टू पेस्ट अटैक. अगर पेस्ट अटैक हो जाता है देन द फार्मर्स लूज एवरीथिंग. जो भी इन्होंने एक्सपेंस किया है, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, दैट विल बी ऑफ नो यूज. दैट इज़ बिग ड्रॉबैक अगर पेस्ट अटैक होता है तो. लिमिटेड क्रॉप्स, यस, HYV सीड से ना सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स को ही बेनिफिट मिला हुआ है, जैसे कि वीट, राइस, मेज एक्सेट्रा. कमर्शियल क्रॉप्स सच एज टी, रबर एंड जूट, इनके लिए कोई वैरायटी सीड्स नहीं थे. सो इट बेनिफिटेड ओनली लिमिटेड क्रॉप्स. रीजनल इम्बैलेंसेस. रीजनल इम्बैलेंसेस मतलब फर्स्ट फेज में हमने देखा कुछ स्टेट्स थे, फिर दूसरे भी स्टेट्स कवर हुए, लेकिन ओवरऑल बैलेंस कंट्री का नहीं था. बेनिफिट हुआ लेकिन वो कुछ ही स्टेट्स को बेनिफिट हुआ सेकेंड फेज में भी. सो इम्बैलेंसेस रहा. बेनिफिट किन स्टेट्स को गया? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश. दीज आर द स्टेट्स जिनको बेनिफिट मिला. रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में कुछ बेनिफिट नहीं था. सो इम्बैलेंस, इनइक्वालिटीज़ आ गई. सो दीज आर द शॉर्ट कमिंग्स. इट इंक्रीज द डिस्पैरिटीज़. पेस्ट अटैक का रिस्क हमेशा रहता था, कुछ ही क्रॉप्स के लिए बेनिफिट था एंड इम्बैलेंस इन द कंट्री वॉज सीन. Now, what steps are taken by the government under green revolution? यहाँ जो हमने अभी limitations देखे, disparities थी, pest attack था, ये सब limitations देखे, उसके लिए government ने क्या किया? That is this topic about steps taken by the government under green revolution. Okay, let's see क्या क्या government ने steps लिए हैं इन negative points को overcome करने के लिए. See, good point. The government provided loans at low rate of interest to small farmers. से हमने देखा it increased the disparities between the rich and the poor. Rich farmers were able to enjoy because उनके पास incentives या money है, money power है. Small farmers इसका benefit नहीं ले सकते हैं. So what the government had done, started giving loans at a cheaper rate, low interest rate, so that small farmers can also enjoy
the benefit from the green revolution. अब फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ये सब कॉस्टली है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडाइज फर्टिलाइजर टू द स्मॉल फार्मर्स. फर्टिलाइजर्स जो एक तो गवर्नमेंट ने उनको लो रेट पे लोन दिया, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने उनको फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी भी दे दी, सो दे कैन परचेज इट ईजिली. तो अगेन इट इज़ अ गुड पॉइंट विच इज़ डन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. थर्ड पॉइंट, रिस्क जो पेस्ट अटैक का था वो भी अब रहा नहीं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बाय द गवर्नमेंट. नो, दे स्टार्टेड हैविंग सच फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिसकी वजह से पेस्ट अटैक है वो अब नहीं होता है. नाउ अल्टीमेटली ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड नाउ स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर्स बोथ. पहले हमने देखा था कि वो फार्मर्स जो रिच है उनको ही बेनिफिट में रहता था, बट बिकॉज ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट नाउ इट स्टार्टेड benefiting the small farmers also. Now ग्रीन रेवोल्यूशन वुड फेवर्ड रिच फार्मर्स ओनली. हाँ देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट सिर्फ रिच फार्मर्स को ही जाता. कब? जब गवर्नमेंट कोई स्टेप्स नहीं लेता तब. इफ द स्टेट डिड नॉट प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन एंश्योरिंग स्मॉल फार्मर्स ऑल्सो गेन. अगर गवर्नमेंट ये स्टेप्स नहीं लेता, कौन से स्टेप्स? लो रेट इंटरेस्ट रेट, सब्सिडाइज व्हाट यू कॉल फर्टिलाइजर्स. अगर ये स्टेप्स गवर्नमेंट नहीं लेते तो बेनिफिट सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन का लार्ज फार्मर्स को ही मिलता, स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट इसका नहीं मिलता. ओके, सो अल्टीमेटली द सॉल्यूशन हियर, द कंक्लूजन इज दैट दोनों को बेनिफिट मिलने लगा, रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स को. सो दिस इज द रिफॉर्म दैट गवर्नमेंट हैज़ done for improving the agriculture situation in our country. See, so far two reforms we have discussed, उनके बारे में हमने बात की. The first one that was in the yesterday's lecture, that was about land reform. आज के लेक्चर में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात की. So ये दो रिफॉर्म एग्रीकल्चर में हुए थे, that we have seen here. Okay, thank you and have a nice day.